ठीक है मैम। और वीडियो सेटिंग भी देख लेना, ठीक है क्या? ठीक है। हाँ हाँ मैम, आपका फेस सही आ रहा था। फेस तो आ रहा है, बट मैं ये रख लेती हूँ कुछ आगे, टेबल वगैरह। अभी ज्यादा बेटर है क्या? हाँ मैम, अब बेटर है। ठीक है। आप पूजा दीदी के सन हो? हाँ मैम। हो रहा है स्क्रीन शेयर ठीक से? हाँ, स्क्रीन आ रहा है सही से। तो ये फुल स्क्रीन करना पड़ेगा ना, ऐसे साइड स्क्रीन्स भी दिख रहा है। आप भी हाँ, मैं ही कर रही हूँ अभी, तो ठीक है। हाँ, आ रहा है पूरा। पूरा आ रहा है ना? हम्म। मैं ये देखती हूँ ये शेयर हो रहा है कि नहीं। मैं आपको दिखा देती हूँ, आपके फ्रेंड्स भी रहेंगे ना। हाँ इसमें मेडिटेशन कमेंट्रीज लगाऊंगी मैं। वो वेटिंग रूम, और आपको है ना अच्छा डिसेबल मुझे करना पड़ेगा ना वेटिंग रूम। हाँ। हाँ, कर दिया। इसमें देखना आवाज आ रही है, स्क्रीन और आवाज आ रही है ना? हाँ मैम, ऑडिबल है। हाँ मैम, ऑडिबल है। म्यूजिक की आवाज आ रही थी ना? हाँ मैम, अभी भी आ रही है। हाँ मैम, अभी आ अब रही है। पॉज होगी। हाँ। अब पॉज होगी। हाँ जी। नहीं, मैं ऑडियो मेरा ऑफ करके देखती हूँ, और फिर आ रही है क्या आवाज? हम्म। आप बताना, मैं मेरा ऑडियो ऑफ रख रही हूँ। शेयर स्क्रीन शेयरिंग ऑन है। ठीक। शेयर स्क्रीन साउंड। ओके। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। अभी आ रही थी आवाज, मैंने म्यूट रखा था अपने आप को। हाँ मैम, ऑडिबल है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।
में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा Hello everyone, good evening. So Ma'am, Vishwish, we can start the Yes, session, ma'am. or we should wait for few more participants? Ma'am, we can start, but I was meant to share that slide which had your achievements with everyone. So should I just read it out, or would you make me the host and then I can read it out? Okay, you can give the intro, and then I will share the slide. Okay. Good evening, one and all present here. I'm Vishwesh. I'm an intern at Shiva, and today we have with us Miss Kanika Jain. She is a counselor by profession in GM Momin College and a Raj Yoga practitioner since the past 20 years.
She's a visiting counselor in Global Hospital, Mount Abu. Her research works includes articles on jealousy syndrome, meditation. She also has been delivering lectures on how to overcome exam fear, why mind matters, self-management, mental and Management, physical diet. like, She has right? successfully She has conducted 200 successfully plus conducted workshops 200 for teaching, non-teaching, medical, workshops for paramedical, teaching, corporate non-teaching, staff, medical, children. paramedical, corporate staff, children. She has been facilitating workshops all She over has India been on human facilitating values, workshops our all over intrinsic India on human values, team values, building, our and mind intrinsic mapping. values, team Her building, and corporate mind client mapping. includes The companies corporate like client Joycell, includes Deepak companies Fertilizers like Limited, Joycell, Trapros, Deepak National Fertilizers Health Limited, Hospital, Housing Trapros, National Societies, Health schools Hospital, and Housing colleges. Societies, And her NPO colleges, clients include and Brahma her Kumaris, NPO Robert clients Army, include Mental Brahma India. Kumaris, Robert She Army, also Mental holds a India. postgraduate diploma in Also holds a counseling and postgraduate hypnotherapy and a diploma in certified counseling and hypnotherapy and a neuro-linguistic certified practitioner. neuro-linguistic practitioner. We can start, ma'am. Hello everyone. Hello Are everyone. you able to hear me? Are you able to hear me? Yes, ma'am. I'm getting voice echo. I'm getting voice echo. There is a echo effect. There is a echo effect. Hello. So we will see here what is meditation and who, where, and when to meditate. Are are you able to hear me? Yes, ma'am, you are audible. Yes. Yes. Okay. So meditation can be done by anyone. A group also they can do meditation, and it should be the peaceful environment. There should not be any much noise and noise pollution. Away from that, you can meditate. And the best meditation time is early in the morning. When you wake up, the first thing is that you can meditate for 40 minutes. If you have less time, then at least you can meditate for 10 minutes. Okay. And meditation, there are different forms of meditation. We will see into that, and what are the benefits of meditation, and more details we will look further. So these are the few pictures who can meditate and where to meditate. There are meditation healing centers also, which you can visit if you don't have any peaceful area nearby or at your home. So you can visit many of the meditation centers to meditate. So meditation, if I say meditation, so meditation means what? Remembrance. So if I ask you to remember your mother, so do you have to take any posture? It is easy to remember, right? So in the same way, if I tell you to visualize what is the color of your bed sheet now, today, so is it easy or hard? It's easy. So meditation you can do whenever you are like, if you feel you're lonely, actually you can be in your own company, and it will be very peaceful and wonderful experience. तो मेडिटेशन इज नॉट अ टॉर्चर, जैसे एक पैर पे खड़े हो गए, पानी में समाधि ले लिया. दिस इज नॉट अ we should not practice like torture type of meditation. Meditation could be a fun. Okay, I have not on my video. So meditation could be a fun process. So like if I ask you to visualize, just close your eyes for a moment and visualize you are holding a lemon in your hand. You have cut the lemon with a knife and you squeeze the lemon into your mouth, and you have to just feel the taste. I hope many must experience the bitter taste of lemon. Okay. So whatever we feel, we experience it.
We have to feel, we have to hear. So we have to enjoy meditation process. Okay. So what are the benefits of meditation? Meditation, before going ahead, I will just on one commentary of Silva meditation. You can just practice. It is 6 to 7 minutes. Are you able to hear? We are so lucky to be experiencing one of the most powerful mind power techniques in the world today, the Silva Mind Method. Sit down comfortably or just lay down and take deep breaths to align with your deepest senses. Bring focus to your breath, in and out, in and out, in and out. Let's count backwards, starting from 25, 24, 23, 22, 21, 20. With each number, you keep going deeper and deeper and deeper, feeling more relaxed, lighter, as if in an awakened sleep. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, keep going deeper and deeper, 8, 7, still deeper, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You're absolutely in an awakened, deep sleep mode. Now bring your middle finger, your index finger, and thumb together. This is your anchor. Tell your mind, dear mind, every time I bring these 3 fingers together, I will be in this state of mind, this deep, relaxed state of mind, absolutely sharp, awakened, happy, relaxed. This is your anchor. Now visualize with your eyes closed, breathing deep, the number 333 right in front of your mental screen. Now visualize the number 222 in front of your mental screen. Now visualize the number 111 in front of your mental screen. Rub it all away. Now on the right hand side of your mental screen, create a huge frame in sparkling blue. A sparkling blue frame. And now visualize the picture of your problem in that blue frame. Do not get emotionally attached. Just visualize the problem in the blue frame. Observe it.
Now rub the picture, rub away the blue frame and create a sparkling white frame. Divine light in this white frame. Now paste the picture of the solution, a happy dream, the final outcome in this white frame, and start to slowly move this frame to the left of your mental screen. Keep moving it to the left. Keep moving it to the left. Awaken all your 5 senses. See it. Hear what the people are talking about in the picture. Smell the ambience. What would it smell like? Taste the air. Touch the people in the picture. Awaken all your 5 senses and keep moving the picture to the left. You could bring the picture back in the center of your mental frame and move it again to the left. Open all your 5 senses. Smile. Believe. Be passionate. Be focused. Be assured that your mind is going to pass the right messages to your brain to make sure this goal comes true. Now let's slowly come back to our optimum awakened state. I will count from 1 to 10. With each passing number, you will slowly come out of this amazing deep sleep state. 1, a little awakened. 2, re-energized. 3, inspired. 4, rejuvenated. 5, 6, 7, 8, 9, absolutely awakened, re-energized, assured, confident, happy, fulfilled, filled with love, compassion and glory. That is the silver lifestyle. 10. Rub your hands. Place them over your eyes and open your eyes whenever you're ready. Did you all experience better? How you all feeling? So these are the benefits of meditation. Yeah, it was good. What is the name of this meditation? Good. Silva What is the meditation. name of this meditation? Silva See here. meditation. Josh Silva. When we forget to use visualization and imagination, it is like not using your minds. So whenever we practice meditation, we have to visualize and meditate. Okay. So these are the benefits of meditation. It boosts confidence.
Okay, and it builds immunity. If anyone has any sleep problems, sleep issues, insomnia, so that can also be cured with meditation. So one can practice early in the morning and before sleep. We'll move ahead. So there are many types of meditations, like chakra meditation for 7 chakras. We have 7 chakras in the body. So to clear our 7 chakras, we can practice chakra meditation. Third eye meditation is focusing on the middle of the forehead. And then Kundalini yoga means chanting by saying is a single point, focusing on the single point like candle. Candle flame you can focus. And then pranayama is a breathing meditation. And then Nada yoga is musical meditation. Using light, soft music, we can practice meditation. So now we'll see these all these types of yoga is somewhere connected in other forms, like in Silva meditation or any Raj Yoga meditation or chakra healings. All are these like connected, and many other healers, they have given their own names to the healing therapy. So we can practice any of them, or we can practice together also. Like nowadays, like while doing physical yoga, they even concentrate, or asked to concentrate like practicing meditation also along with physical yoga. Giving affirmations, we can practice physical yoga. So here it's one of the form of forgiveness meditation. So forgiveness meditation, what is forgiveness meditation? So it heals your heart. So for how you can practice, you can find a comfortable, quiet place and ask the higher power for forgive. And also you have to visualize the person to whom you have forgive. You have to forgive. You have not yet forgiven them because of past instances, but you have to forgive now. So forgiveness you can practice in the way of writing, or in the way of writing is the best way. And also you can also tell also. So we will practice the forgiveness meditation. You can for practicing forgiveness meditation early in the morning before sleep, you can do this. और कभी भी आपको ऐसे गुस्सा आता है तो you can practice this. You can make a note and forgive that person and let go the things. And now I will on this. Before forgiveness, also I will just this gratitude. I will discuss the other form of meditation also. Gratitude meditation. So here what is that? Ki, whenever you get up early in the morning, you have to feel thankful for each and everything. For your body, for the bed, for the pillow, everything what you are using, or whomever you have met in your life, you have to be thankful for that. You have to be thankful for the food you eat. Everything you have to be thankful. So you have to be you have to make the thankful note also once you get up. And every time whenever you communicate with someone or someone helps you, so you should be thankful for that. This is also a type of meditation. When you are going to sleep, so don't go to sleep with many burden in your mind कि आज इसने ऐसा किया, आज मेरे आज ये हो गया. तो go to sleep with a feeling of gratitude कि आज क्या अच्छा हुआ, उस फीलिंग के साथ जाना है. देखो अप्स एंड डाउन्स तो सबके साथ होते हैं, बट हमको सोना कैसे है, अच्छे फीलिंग्स के साथ सोना है. Go to sleep with a feeling of gratitude for having to spend one day more with existence. है ना. अभी देखो कोरोना में भी, so we are blessed that in 2021 we are alive. है ना. So
one more day we have spent with existence, so we should feel gratitude. Wake up with the feeling of gratitude or having one more day with existence. So gratitude meditation helps in breathing, beating stress, insomnia, and building emotional resilience. We have to thank our body. So this forgiveness and gratitude meditation we will practice for 2 minutes. This is of Deepak Chopra. This meditation is about gratitude and forgiveness. Are you all able to hear? Gratitude opens the door to abundance consciousness, and forgiveness allows you to get in touch with your soul. Forgiveness is absence of peace. Forgiveness is letting go of resentments, grievances, anger and hostility and judgment. Nelson Mandela once said, holding on to a resentment is like holding on to poison or drinking poison and hoping it'll kill your enemy. It doesn't work. If you embrace gratitude and forgiveness, you will find that you open the door not only to abundance, but infinite creativity, which is an expression of your soul. Please close your eyes and observe your breathing. Do not manipulate your breath, just observe it. If you're distracted by thoughts, noises or sensations, just gently come back to your breathing. Allow your mind to settle into your breath. Now, with your eyes closed, put your awareness into the area of your heart. Just mentally ask the question, what am I grateful for? Just ask the question, let it go. What am I grateful for? Allow any sensations, images, feelings and thoughts to come to you. Just do this for a couple of minutes. What am I grateful for? What am I grateful for? Ask the question, let it go. What am I grateful for? What am I grateful for?
Allow any sensations, images, feelings, and thoughts to come to you. Now, keeping your awareness in your heart, mentally say to yourself, today I will judge nothing that happens. Repeat that a few times, mentally, with your eyes closed, with awareness in your heart. Today, I will judge nothing that happens. Today, I will judge nothing that happens. Let go, relax into your body, and slowly open your eyes. कैसा रहा experience? Will everyone would like to share for what they are grateful for? You are grateful for what? बोलना है किसी को? और यहाँ पे देखो, आपको लिखना भी है, make a note of 5 things you are grateful for. ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप सेशन के बाद लिख सकते हो. डेली आपको 5 चीजें लिखनी है why you are grateful for. ठीक है, अभी anyone would like to share? Otherwise we will move ahead. Meditation is also called a two-way communication. Communication of soul with the supreme soul. पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे मोबाइल को चार्ज करना है ना, मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो वी यूज चार्जर टू चार्ज. द सेम वे मेडिटेशन क्या काम करता है? मेडिटेशन हेल्प्स अस चार्जिंग अवर बॉडी एंड माइंड. तो मेडिटेशन के लिए हमें पहले जानना होगा कि हम कौन हैं. तो वी आर अ सोल, अ स्पिरिट. ओके, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया है, कंप्यूटर में सीपीयू का काम करता है. हाँ, ड्राइवर कार में जैसे बिना ड्राइवर के कार नहीं चल सकती, बिना सीपीयू के कंप्यूटर नहीं चल सकता, वैसे बिना स्पिरिट, बिना सोल के बॉडी चल नहीं सकती है. तो विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन तो क्या होता है, जो भी हमारे अंदर इंटरनल पावर्स है तो वो इमर्ज होते हैं. वी ऑलरेडी हैव दिस वर्च्यूज, लव, पीस, हैप्पीनेस, बट कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं. तो ये सारी पावर्स, वर्च्यूज जो है वो we are able to utilize it, and then it becomes the angelic form where we are even helping others. हाँ, कहाँ हम सिर्फ मांगने का करते थे, but practicing meditation we become a giver also. तो we have to concentrate, we have to focus on the supreme energy. यहाँ पे बताया हुआ है कि जो सर्व धर्म मान्य है, एक सुप्रीम एनर्जी, उस पे फोकस करेंगे तो हमारे अंदर वो सारी पावर्स आ जाएगी. तो यहाँ पे डॉक्टर इमोटो हैं, जापानीज साइंटिस्ट, जिनका देहांत हो गया है 2014 में. तो उन्होंने एक वाटर एक्सपेरिमेंट किया था, पावर ऑफ थॉट. तो पावर ऑफ थॉट का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पहले वाटर के ऊपर. तो जब भी वाटर को मेडिटेट किया यानी अच्छे एफर्मेशंस बोला, हाँ, अच्छी फीलिंग्स के साथ डेली एफर्मेशंस बोला, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल से वो क्रिस्टल फॉर्म में बदल गए. तो सेम एक्सपेरिमेंट बाद में उन्होंने फूड के ऊपर भी किया. यहाँ पे आप देख पा रहे हो पिक्चर, उन्होंने फूड के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया था. तो फूड के भी जो मॉलिक्यूल्स है, जिसको बोला था आई लव यू, तो वो कितने फ्रेश है ना, 21 डेज के बाद भी. पर जिसको बोला था आई हेट यू, विथ फीलिंग के साथ बोला था, डेली जाते थे और उसको बोलते थे आई हेट यू, तो उसके मॉलिक्यूल्स कैसे हो, देखो वो पानी, वो चावल कैसे हो गए थे, बिल्कुल ब्लैक. तो सेम वे आप सोचो कि इन अवर बॉडी वी हैव मोर देन 70% ऑफ वाटर. तो व्हाट एफर्मेशन वी आर टेकिंग,
कि मैं नालायक हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं प्रोकास्टिनेट करता हूँ, हम कितना सारा लेबल लगाते हैं अपने आप को। तो वो क्या है हमारे अंदर, फिर वैसे ही हम बन जाएंगे। जैसे संकल्प से सिद्धि होती है, जो हम सोचते हैं वैसा बनते हैं। तो हमें अभी से एफर्मेशंस लेना है। तो whenever we drink water, whenever we drink any food, we intake any food, तो we have to meditate. कैसे meditate करना है? affirmation meditation करना है। क्या बोलना है affirmation meditation में? कि I am strong, I can do it. Day by day I am becoming better and better. Mentally, physically, financially. ऐसे बोलना है तो वो आप बन जाएंगे। And this is not कि ये सब एक्सपेरिमेंटेड है, हाँ डॉक्यूमेंटेड भी है, यू कैन फाइंड इन दी गूगल। तो ये आपको करना है डेली एफर्मेशन। तो ये बहुत इजी है, फन है, इसमें कोई ये तो नहीं है कि कोई आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, कुछ मेंटली टॉर्चर हो रहे हो आप, कि कोई आसन लगा के ही बैठना है आपको। नहीं, खाते पीते चलते फिरते आपको क्या करना है, मन में एफर्मेशंस ही बोलना है। ठीक है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको बहुत एंजाइटी हो रही है, मेरा पेपर कैसा जाएगा, तो आपको अपने आप से क्या बातें करनी है। मेडिटेशन मीन्स टॉकिंग टू सेल्फ। तो आप अपने आप से कैसे क्या मेडिटेशन करोगे? ऐसे नहीं कि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको समाधि लगा के बैठना, हम वो नहीं बोल रहे हैं आपको। मेडिटेशन करना है आपको, एफर्मेशंस अपने आप से बातें करनी है। आप क्या बोलोगे, मेरा आज का पेपर तो बहुत इजी जाएगा, हाँ आज का मेरा दिन बहुत लक्की है, मैं तो लक्कीएस्ट हूँ, मैं जो पढ़ता हूँ वही एग्जाम में आता है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको अपने से सेल्फ टॉक क्या करनी है कि इंटरव्यू में मैं ही सिलेक्ट होने वाला हूँ, और अपने आप को विजुअलाइज करना है। मेडिटेशन में क्या बोला है, विदाउट विजुअलाइजेशन इज नॉट अ मेडिटेशन। तो यहाँ पे आपको एकदम शांत होके, बिल्कुल सुन होके नहीं बैठना है, आपको वो विजुअलाइज भी करना है कि वो जॉब ऑफर आपको दे रहे हैं, आपके हाथ में जॉब है, और आप वो आपको विजुअलाइज फील करना है कि आप डेली जॉब पे जा रहे हो और बहुत अच्छे से आप जॉब कर रहे हो, आपके असिस्टेंट्स, आपके कलीग्स, आपके बॉस आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो वो आपको फर्स्ट स्टेज पे ही प्रैक्टिस करना है। अभी आपने इंटरव्यू ही नहीं दिया, पर आपको इंटरव्यू जाने से पहले आपको ये चीज की प्रैक्टिस करनी है कि मैं जॉब में सिलेक्ट हो जाऊंगा। ठीक है, तो आपको एफर्मेशन करना है, इनहेल पॉजिटिव थिंग एंड एक्सेल नेगेटिव। जैसे अगर मैं अभी आपको बोलती हूँ, हाँ इनहेल courage and exhale fear, inhale love, exhale, जब भी आप सांस छोड़ रहे हो तो ऐसे सोचो कि आप हेटरेट जेलेसी सब छोड़ रहे हो। एंड व्हेन यू आर इनहेलिंग, ये डेली बेसिस पे आप कर सकते हो, चलते फिरते खाते पीते। तो व्हेन यू आर इनहेलिंग तो आपको सोचना है आई एम ब्रेव, आई एम करेजियस, हाँ तो आई एम रेजिलियंट। तो आपको ऐसे इनहेल करना है पॉजिटिव सोच सोच के। इज इट इजी? समझ में आ रहा है? मेडिटेशन इजी लग रहा है? फन प्रोसेस लग रहा है? देखो यहाँ पे क्या बताया था, मेडिटेशन क्या है, इसमें आपको किसी और की जरूरत है? अगर आप अकेले बैठे हो, बोर हो रहे हो, तो क्या करो, अपने आप से बातें करो, हाँ एफर्मेशंस बोलो, आप देखो कि आपको क्या क्या अचीवमेंट्स मिला है। हाँ, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो अ मेडिटेशन। रिफ्लेक्ट, आपको क्या क्या अचीवमेंट्स मिली है, और कोई अचीवमेंट अगर आपकी छूट गई है, आपने मिस आउट की है, तो उसकी क्या रीजंस है, उसमें आपको कैसे इम्प्रूवमेंट लाना है। तो ये सब सेल्फ रिफ्लेक्शन है। आपके पास्ट में देखो, हाँ कि आपका जो एक्साइटेड मोमेंट था, हाँ कैसा था, आप कैसे फील कर रहे थे। तो देखो हमने सिल्वा मेडिटेशन में एंकरिंग भी सीखा कि आप कोई भी अच्छा मोमेंट सोच के आप एंकरिंग कर सकते हो अपने फिंगर टिप पे। तो जब भी आप दुख का फील करोगे, सैडनेस फील करोगे, तो वो एंकरिंग दबाओगे तो वो आपको इंसिडेंट इमर्ज हो जाएगा माइंड में। राइट? आर यू able to understand? Yeah. Okay. Yeah. तो देखो किसी ने मेडिटेशन वैसे सीखा है कि मेडिटेशन इज लाइक अ विजुअलाइजेशन करना है। फिर कोई कहते हैं कि मेडिटेशन मतलब एकदम सुन हो जाओ, बिल्कुल हाथ पैर भी नहीं हिले, आपके मन के कोई थॉट्स भी नहीं हिले, आपको जस्ट एकदम हाँ न्यूट्रल होके, कोई एकदम साइलेंट होके बैठना है।
ठीक है, तो वो भी एक मेडिटेशन प्रोसेस है। बिल्कुल कोई थॉट्स मन में नहीं हो। हाँ, आप मन में आप कोई एक चीज के बारे में जैसे कॉन्सेंट्रेट करके एक ही चीज पे फोकस कर सकते हो। बिकॉज हमारा जो माइंड है वो जीरो थॉट्स, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीरो थॉट्स हो। तो किसी भी एक चीज पे आप फोकस करके मेडिटेट कर सकते हो। तो मेडिटेशन का बेनिफिट क्या है? मेडिटेशन शार्पन्स द माइंड थ्रू फोकस एंड एक्सपांड्स द माइंड थ्रू रिलैक्सेशन। जब हम रिलैक्स हो जाते हैं ना, अभी आपको बहुत एंजाइटी हो रहा है, आपको एग्जाम, आप यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए हो, बहुत एंजाइटी हो रहा है, तो क्या करो, माइंड को एकदम साइलेंट करके बैठ जाओ, किसी एक चीज पे फोकस करके कि मेरा पेपर, क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आएगा। बहुत सारे थॉट्स रन कर रहे हैं ना, अभी मैं आपको पूछूं आपके मन में कितने, 1 मिनट में कितने थॉट्स आ रहे हैं? कोई बोलेगा 10, 15, 20। तो एट द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू गिव पेपर और एनी इम्पोर्टेंट थिंग, तो आप क्या करो, बहुत साइलेंट हो जाओ। आपके जो थॉट्स है फ्रॉम 20 रिड्यूस इट टू 3-4। उस प्रोसेस को बोलते हैं मेडिटेशन। तो उस पे आपको कैसे स्टार्ट करना है? मेडिटेशन स्टार्ट विथ फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सेल। जस्ट आप सारी बाहर की सारी आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होके इनर वर्ल्ड में फोकस करो। हाँ, अपने थॉट्स पे इनहेल एक्सेल पे फोकस करो, धीरे धीरे फिर विजुअलाइजेशन करो। इज इट इजी? साउंड्स इजी? द मोर यू मेडिटेट, द डीपर यू गो विद इन योर सेल्फ। ओके, और आपकी ग्रास्पिंग पावर भी बढ़ जाएगी और आपको मजा भी आएगा। You will have of a kind of inner peace so strong that nothing in life will be able to shatter it. आप इतने, आपकी विल पावर बढ़ जाएगी, इतना आप इंटरनली स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक है, तो जब भी कोई डिसीजन लेना हो, कुछ भी इम्पोर्टेंट काम हो, पहले 1 मिनट साइलेंट हो जाओ, है ना। तो आप एवरी आवर 1 मिनट साइलेंट का भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप इसका ये अलार्म लगा सकते हो। तो आफ्टर एवरी 1 आवर 1 मिनट साइलेंट भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको कंटिन्यूसली 40 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा एक चक्कर लगाना है, थोड़ा ग्रीनरी को ऑब्जर्व करना है और फिर आके बैठ के स्टडी करना है। ये हो गया एफर्मेशन मेडिटेशन। ठीक है, अभी देखो रूट चक्रास मेडिटेशन में क्या है ना, हमारी बॉडी में 7 चक्रास है, तो उसका क्लींजिंग होता है। जैसे क्राउन चक्रा इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, हम स्टार्टिंग से पढ़ती। रूट चक्रा इज रिलेटेड टू पावर। तो हमें क्या बोलना है, जब भी हमें तो बहुत लो फील हो रहा है, एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा है, तो क्या बोलना है अपने आप से, आई ट्रस्ट। और आपको क्या लेना है, रेड कलर लेना है अपने अंदर, ऐसे विजुअलाइज करना है कि रेड कलर आपके अंदर जा रहा है, जो जहाँ पे आप बैठते हो, जहाँ पे स्पाइन के नीचे रेड कलर जा रहा है और गोल चक्रा के जैसे घूम रहा है। और आपको बोलना है, आई ट्रस्ट इन द गुडनेस ऑफ लाइफ टू कैरी मी थ्रू। फिर जो सकरल चक्रा है, यानी उसके ऊपर का जो पार्ट है, तो आई रिसीव प्लेजर एंड एबंडेंस विथ एवरी ब्रेथ आई टेक। ये प्योरिटी के लिए है। फिर सोलर प्लेक्स चक्रा, आई एम इन टच विद द सोर्स ऑफ माय पावर। इसमें आपको येलो कलर ऑब्जर्व करना है। सकरल चक्र में आपको ऑरेंज कलर ऑब्जर्व करना है प्योरिटी के लिए। ये आपको डाइजेशन आपका इम्प्रूव करता है, सोलर चक्र जो है। और हार्ट चक्र जो है, वो हार्ट में जैसे ब्लॉकेजेस वगैरह होते हैं, तो उसमें आपको ग्रीन कलर लेना है लव के लिए। आई हैव द करेज टू लव अनकंडीशनली। जिनके अंदर लव की कमी होती है तो हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो हमें ये विजुअलाइज करना है ग्रीन कलर, और एफर्मेशन बोलना है मन में, आई हैव द करेज टू लव अनकंडीशनली। टू लव ऑल्सो आई एम रिसीविंग अनकंडीशनल लव। फिर थ्रोट चक्रा में, आई स्पीक माई ट्रूथ एंड एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑनेस्टली। जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को, तो थ्रोट चक्रा की प्रॉब्लम हो जाती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां पे आपको स्काई ब्लू कलर विजुअलाइज करना है। फिर ये है ब्रो चक्रा, तो ये आपको इसमें, आई ओपन माई सेल्फ टू इनर गाइडेंस एंड विजडम। आपके जो थर्ड आई चक्रा है, ये आपको विजुअलाइज करना है, इंडिगो कलर। फिर वॉयलेट कलर है क्राउन चक्रा, जो हमारे
ठीक है, तो ये सारे चक्रास मेडिटेशन भी है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसकी भी कमेंट्रीज आपको आराम से मिल जाएगी गूगल पे, तो वो लगा के आप कर सकते हो। किसी दिन कुछ प्रैक्टिस किया, किसी दिन कुछ किया, तो ये आपको वेन एवर यू गेट अप एंड बिफोर स्लीपिंग कोई ना कोई मेडिटेशन आपको करना ही है। तो इससे आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस है वो रिप्लेस हो जाएंगे, जो भी आपके नेगेटिव हार्मोन्स है तो रिप्लेस हो जाएंगे हैप्पी हार्मोन से। ओके, आर यू ऑल गेटिंग इट? फिर ये ग्रेटिट्यूड का भी हमने किया था। ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस का तो आप एक जर्नल बना लो, बुक बना लो, उसमें आपको डेली लिखना है ग्रेटिट्यूड भी और फॉरगिवनेस भी। साथ के साथ फॉरगिव भी करना है, लिखना है, फॉरगिव करना है, लेट गो करना है, ग्रेटिट्यूड भी करना है, उसमें लिखना है आपको जर्नल में। तो ये बहुत अच्छा आपका एक प्रैक्टिस रहेगा। फिर ये जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन का जो हमने ग्रेटिट्यूड पार्ट देखा, तो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स दी बॉडी, तो बॉडी को हम ग्रेटिट्यूड, हम थैंक्स कैसे बोलेंगे? जब हम उसका ध्यान रखेंगे तभी हम बॉडी का थैंक्स बोलेंगे ना। आज देखो दुनिया में कितने लोग अनहेल्दी है, तो वी शुड बी फीलिंग ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अवर बॉडी। अभी हमारी बॉडी हेल्दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसको केयरलेस ले लेना है। हम उसका ग्रेटिट्यूड कैसे करेंगे? हम उसमें आसनास या फिजिकल एक्सरसाइज और मुद्रास जो कनेक्टेड होते हैं ना हमारे फिजिकल बॉडी के साथ भी, ब्रेन के साथ भी, तो हमको मुद्रास और आसनास करना है। ठीक है, तो ये भी आपको मिल जाएगा, ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है, इसके लिए भी आपको टाइम निकालना है। तो बेस्ट वे क्या है? अभी है तो सबके पास 24 आवर्स ही, सबको टाइम की कमी लगती है, और बेस्ट टाइम कभी है? अमृत वेला। तो अमृत वेला आप देखोगे कितने फॉरेनर्स भी हैं जो अमृत वेला उठते हैं, कितने ऐसे स्पीकर्स हैं जो हीलर्स हैं जो सुबह उठते हैं। 4 o'clock का 4 o'clock क्लब सुना होगा आपने, जितने भी मल्टी मिलियनर्स हैं तो वो सब 4 o'clock उठते हैं अर्ली मॉर्निंग। तो उससे क्या होता है ना, कनिका, हाँ जी कनिका कुछ बोल रहे हैं? तो इससे क्या होता है ना, समझो जिनको काम पे जाना है 8 बजे 9 बजे, तो वो उठते हैं समझो 6:37। तो आप देखो 2 आवर्स, तो 2 आवर्स से 3 आवर्स हमको एक्स्ट्रा मिलता है only to love ourselves. And how we can love ourselves? By practicing meditation, by physically doing practicing exercises, right? तो हमें मॉर्निंग जल्दी उठने से ये फायदा है कि हमको हमारे खुद के लिए 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो सभी कर पाएंगे अपने लिए? सब अभी अपने आप को प्यार करते हैं कि नहीं? तो आपको सुबह उठ के मेडिटेशन करना है। तो मेडिटेशन में आपको मेंटली ग्रेटिट्यूड, एफर्मेशंस, फिर सिल्वा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें यही है, एंकरिंग करना है, विजुअलाइजेशन करना है, जो आप बनना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, जो आप अपना गोल सेटिंग करना चाहते हो, वो सब आप इससे कर सकते हो। मेडिटेशन से आप अपना गोल सेट कर सकते हो। हाँ, आपको जो अचीवमेंट्स चाहिए वो आप सब उससे प्लानिंग कर सकते हो। इज इट इजी? मेडिटेशन इज इजी और नॉट? ठीक है, अभी हम और एक देखते हैं, ये है हो ओपोनो मेडिटेशन। ठीक है, तो ये हाइवान हीलिंग मेडिटेशन है। इसमें क्या है ना, 4 सेंटेंसेस हम रिपीट करते हैं और हमको विजुअलाइज करना है जिससे हमको माफी मांगनी है ना, जिनसे हमको माफी मांगनी है, तो उनको विजुअलाइज करना है अपने बिल्कुल सामने, और जैसे आंखों में आंखें डाल के आपको ये रिपीट करना है। दिस इज वेरी पावरफुल मेडिटेशन। मैंने खुद भी अपने ऊपर मैंने प्रैक्टिस किया है, और ये बहुत पावरफुल मेडिटेशन है। आप इसको सुनिए और इसको प्रैक्टिस करिए। इसमें 4 सेंटेंसेस होते हैं जो आपको कंटिन्यूअसली रिपीट करना है। आई लव यू, उनको बिल्कुल विजुअलाइजेशन में उनकी आंखों में आंखें देख के आपको बोलना है, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू। ठीक है, ये आपको दिल से बोलना है। ये मैं आपको सुनाती हूँ और आप ध्यान से सुनिए। पहले सुना है इसके बारे में? स्टार्ट। Welcome to this Ho'oponopono guided meditation.
Assuming you already know about Ho'oponopono and the 4 phrases, in this audio I'll simply be repeating the 4 statements repeatedly over and over again as you sit and listen and feel them. If you're new to Ho'oponopono and maybe not sure completely what it is, I provided some links in the description below to learn more about it. So I won't explain any of that here. The intention of this recording is simply to allow you to hear the phrases repeated over and over. Simply sit and listen to them. You can say them out loud along with me, however you want to use them. But this Hawaiian tradition of these 4 phrases has impacted many people's lives over the years. So allow it to impact yours as well. So let's begin. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me.
Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I hope you enjoyed this Ho'oponopono meditation. Return to this recording anytime you. हाँ जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? ये तो बहुत बढ़िया था, बट एनी specific person to be visualized while repeating this statement, this हाँ जी, four statement. हाँ जी, जिसके साथ अभी आपका रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ है ना, अच्छा, आप उनको एकदम विजुअलाइज करिए, जैसे आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बहुत डीपली जैसे बोलते हैं ना, इसमें कैसा है ना, आपको रोना भी आएगा और एकदम दिल से जैसे निकलेगा ना, वो बात उन तक पहुंचेगी। कई बार होता है, अभी आप क्लेरिफाई करना चाहते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो सुनने को ही राजी नहीं है। तो I have इसमें क्या heard this कर but never हाँ observed. जी, तो इट्स अ वेरी पावरफुल टूल, आपको गूगल में मिल जाएंगे, आप ये लगा के आप करिए, मतलब जो भी है जिनको भी वो कर सकते हैं। और इसमें कैसा है ना, रिलेशनशिप इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आप राइट अ लेटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग वी कैन प्रैक्टिस, राइट अ लेटर। इसमें क्या होता है ना कि हमको लेटर लिखना है, उसमें भी यही सारी चीजें हैं जो अभी हम सुन रहे हैं ना, वही सारी चीजें हमको डेली लिखना है। अभी हम लेटर लिख रहे हैं पर वो रिसीव नहीं करेगा और ना ही वो पढ़ेगा, तो क्या कर सकते हो ना, व्हाट्सएप में आप उनके ही ना आप क्या उनको तो आप ऐड भी नहीं कर सकते जो अगर आपसे बात नहीं कर रहा है, पर आप एक डमी आप ओपन कर सकते हो और उसमें डेली आप लिखिए लेटर, और डेली ये बातें बोलिए और लिखिए जो जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो उन तक जरूर पहुंचेगी। और ये भी आपको प्रैक्टिस करना है और लिखना भी है, नहीं लिखने होता तो एटलीस्ट breathe in, breathe प्रैक्टिस out, करेंगे। ये breathe in, breathe out भी करना है क्या? हाँ जी, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये भी कुछ लिखा हुआ है ना स्लाइड में। हाँ, तो ये ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, तो जैसे भी आप ब्रीथ इन कर रहे हो ना, ब्रीथिंग तो चालू ही है आपकी जब भी आप ये बोल रहे नॉर्मल हो, ब्रीदिंग ना, नॉर्मल। बाकी ये वर्ड्स में मत फोकस करो कि ये वर्ड पे मुझे ब्रीथ इन करना है, गो विथ द फ्लो, बहुत इजीली लाइटली अच्छे से करिए, अच्छे से कर सकते हैं। ये लिखा है उन्होंने, क्योंकि एक सांस में एक ही चीज बोलेंगे ना हम, फटाफट, तो मतलब इसलिए लिखा है कि फास्ट फास्ट नहीं बोलना है हमको, एक सांस में एक ही चीज बोलनी है, धीरे धीरे फीलिंग के साथ विजुअलाइज करके बोलना है। अभी हमारे पास 3 मिनट बचे हैं, तो एक ये लास्ट ले लेती हूँ। और एक होता है मेडिटेशन कर्म योगा, जैसे हमने पहले भी बोला, खाते पीते चलते फिरते हम मेडिटेशन कर सकते हैं, वो भी एक कर्मा योगा है। और कर्मा इन द सेंस की आर्ट ऑफ एक्शन है ना, हमारे एक्शंस कैसे होने चाहिए। कर्म योगी किसको कहेंगे? दोज हु वर्क टुवर्ड्स हैप्पीनेस फॉर ऑल बीइंग, है ना, अपने खुद के लिए भी और पूरे अपना ह्यूमैनिटी के लिए भी जो करता है सेवा, हाँ, तो उसको कहेंगे कर्म योगी। तो जैसे यहाँ पे बताया है, वर्क फॉर द सेल्फ, पहले हमने हमारे खुद के लिए किया इनहेल एक्सेल मेडिटेशन, अपने आप को पावरफुल बनाया, ये सारे मेडिटेशंस किए हमने अपने लिए, एफर्मेशंस लिए। फिर हम फैमिली के लिए भी ले सकते हैं, उनके लिए भी हम एक ऑरा क्रिएट कर सकते हैं, हाँ, उसको बोलते हैं सुरक्षा कवच। तो हम मेडिटेशन में, जैसे रामायण में भी हमने देखा है कि जब भी इसने लक्ष्मण ने बाण छोड़ा था ना, बाण चलाया था राम के बच्चों पे, लव कुश पे, तो उन्होंने अपने आसपास एक सुरक्षा कवच क्रिएट कर लिया था, राइट। तो ऐसे ही हम हमारे आसपास भी सिल्वा मेडिटेशन में भी सिखाया जाता है, एक सुरक्षा कवच आप अपने लिए भी बना सकते हो और अपने हर एक फैमिली मेंबर्स के लिए भी। तो ये इस तरह से हम फैमिली की भी सेवा कर सकते हैं, और अनेक तरह से ना, हमारे फैमिली मेंबर्स की, और फिर बाद में कम्युनिटी के लिए भी, जो डिप्राइव्ड हैं, जिनके पास इतना नहीं है, तो हम उनकी भी सेवा कर सकते हैं। और जो फिजिकली हम मनी फॉर्म में नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हम मनसा सेवा कर सकते हैं, बीइंग एंजल। हम पूरे यूनिवर्स को हम जैसे उनके आसपास भी ऑरा बनाए कि हाँ, कोई कोरोना से कोई इफेक्ट नहीं हो, कोई बीमारी से, जैसे लेडीज की भी प्रोटेक्शन हो, जो
किडनैप हो जाते बच्चे, उनकी भी प्रोटेक्शन हो। ये मैंने खुद ने भी एक्सपेरिमेंट किया है, तो ये आप कर सकते हो। जो हमारे रोड एक्सीडेंट्स इतने होते हैं, तो हमारे तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, ये 21-21 दिन का, हाँ 7 डेज का, कि ये जगह पे हम मेडिटेशन करते हैं, कि ये जगह पे बिल्कुल एक बहुत एक्सीडेंट प्रोन जगह थी, तो उस पे हमने कंटिन्यूअसली मेडिटेशन किया वो दिन, और आज का दिन कभी वहां पे एक्सीडेंट हुआ नहीं है। तो ऐसे हम मनसा सेवा भी कर सकते हैं मंथली भी, और फिजिकल फॉर्म में भी हम जितना कर सकें मन से, तन से, धन से हमें करना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज कर्म योगी भी, ये भी एक मेडिटेशन है, जैसे भगवत गीता में बताया गया है ना, इसके ऊपर, कर्म योग के ऊपर। तो इस ये कर्म योगी, पीछे तो हमने अभी ये सारा मेडिटेशन का हमने कवर किया है। किसी की कोई क्वेश्चन आंसर है तो पूछ सकते हैं। तो हम पूजा, सिस्टर पूजा। जी ओम शांति करने का बहन। हाँ जी, ओम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जी आप कुछ कह रही थी कनिका? नहीं, मैं वही बोल रही थी कि कैसे अभी हो गया मेरा तो। अच्छा ओके। किसी को कोई क्वेश्चन आंसर है तो पूछ सकते हैं। नहीं क्वेश्चन तो कोई भी नहीं है कनिका सिस्टर, बट इफ यू गिव परमिशन तो बताओ कि कैसे आपने ड्राइविंग सीखा और प्रैक्टिस विद योर मेडिटेशन हाँ जी, क्यों, मैंने भी उसमें विजुअलाइजेशन किया था ना, मेरे सामने एम था, मैंने किसी को ये बनाया था, रोल मॉडल बनाया था, मेरे आगे था कि वो बहन भी चला पाते हैं, वो इतनी सेवा करते हैं, हाँ दीदियों को लेकर आते जाते हैं। तो मेरे पास सामने एक एम था, एक गोल था कि मुझे वो अचीव करना है। मैंने अपने लिए नहीं सोचा था, पर मैंने सेवा भाव के लिए ही कार लिया, और मुझे बहुत मन से इच्छा थी कि मुझे करना है। पर मैं जहाँ सच्ची में मुझे अभी भी वो डर लगता है, वो जब भी टोल नाका आता था मुलुंड का, और मैं जब भी ऐसे निकलती थी, फिर यहाँ से ट्रक बसेस आते थे, तो मुझे ऐसे लगता था नहीं बस मैं नहीं कर पाऊंगी। पर वो मेरे सामने गोल आता था कि नहीं वो मुझे अचीव करना है, और बोलते ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितने भी स्पीकर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, उन्होंने भी बहुत सारी गलतियां की है, मिस्टेक्स की है। तो हमें स्टेज पे आने से डरना नहीं है, हमें कोई भी जिंदगी का एग्जाम देने से डरना नहीं है। मैं बच्चों को वही बोलती हूँ कि सुसाइड करने के लिए क्यों सोचते हो। मेरे फैमिली में ही एग्जाम्पल है, जो 4 बार फेल हुआ और हमने हलवा बना के खिलाया। अच्छा। और आज वो बच्चा इतना सक्सेसफुल है ना कि मैं क्या बताऊं। 4 बार फेल हुआ, हमने हलवा बना के खिलाया, बहुत अच्छे से उसका स्वागत किया। कोई बात नहीं, कि हर एक का टाइम होता है ना, हमें भी उसे स्पेस देना है, पर उसको अपने आप ही समझा, हमने ना डांटा ना कुछ समझाने की भी कोशिश की। हम बस खाली मुस्कुराते थे और हलवा बना के खिलाते थे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार हमने कभी नहीं डांटा, ना ही कुछ समझाने की कोशिश की कि भाई तू पढ़ नहीं रहा, क्योंकि हमें दिख रहा है वो पढ़ रहा है, पर किधर क्या मिस्टेक है उसने ही समझा फिर अपने आप को, और उसने ही सुधारा, और फिर बच्चे समझे कि बिकॉज यू वर मेडिटेटिंग, तभी आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, तभी आप में पॉजिटिवनेस आती है, पर आप मेडिटेशन से पॉजिटिवनेस आती है, हमारे इमोशंस अच्छे मजबूत बनते हैं, विल पावर बढ़ती है। तो ये आपने बराबर कहा है, ये सारी जो अचीवमेंट्स है, ये मेडिटेशन ही कहीं ना कहीं उसका आधार है। वेरी नाइस सेशन कनिका भाई, Okay, so just to bring this to your kind notice, we also have Dr. Azim Dana here with us, who is the president of the of Shiva. And thank you so much, ma'am, for this wonderful session. My pleasure. I guess. And thank you to Azim sir for trusting me and giving me this platform to share my views. Thank you, sir. Thank you, sir. I feel we can wrap up. Azim sir is always our backbone.
Thank you, thank you. And thank you, Vishwesh ji. You have also handled everything. And अच्छा है 40 minutes का वो निकल गया, तो वो भी एक अच्छा था. हाँ मैम, वो फर्स्ट टाइम यूज करा था ना मैंने, तो मेरे पास वो अभी ऑप्शन था एक्सटेंड करने का. अच्छा हो गया, अच्छा हो गया. And thanks to all the students and to all your friends, Vishwesh ji. Thanks to all the participants. Thank you. Thank you, sister. Thank you. I can end the meeting. Yes ma'am, you may end the meeting. Hello, Pooja sister. Okay. Thank you for giving chance. Thank you for sparing time for all the students and for inspiring all of us. Thank you. Yeah, my pleasure. Bye. Bye.